Hi guys, I'm Karthik. Welcome to Akarshan Style Files with Kat. And today we are going to talk about body positivity and mental health. But wait, I think I'm not the right person to give you a lot of gyan कि mental health क्या होता है क्या नहीं. So today I have a professional with me. I have a guest who's very special. She's calm, she's simple, she's fierce, and she's very experienced. I have a psychologist with me. So I would like to welcome Swati. So first of all, I would like to ask Swati to introduce herself because मैं justice नहीं कर पाऊँगा. So why don't you introduce yourself, Swati? Hello, Karthik. I am really thankful to you that you have invited me in today's session, and I would like to introduce myself first. So, basically, I am a clinical psychologist. I am a RCI licensed clinical psychologist, and I have completed my MPhil and my master's in clinical psychology. And I'm dealing with patients of clinical as well as counseling settings. So basically, I'm treating patients who are suffering from depression, anxiety, to patients who are having marital issues and other body related and stress related issues. And I'm also providing personality assessment and other IQ testing as well in children as well as in adults. I am the person for consulting for the counseling and for therapy purposes, psychotherapy basically. मूविंग फॉरवर्ड स्वाति, आजकल क्या होता है ना कि बहुत सेल्फ लव पे फोकस किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एज आई वर्क ऑन बॉडी पॉजिटिविटी, देर आर अदर टर्म्स लाइक बॉडी इंक्लूसिविटी, बॉडी न्यूट्रलिटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो सेल्फ लव, बॉडी पॉजिटिविटी, अपने आप से प्यार करना, ये लकीली इट्स बीइंग प्रमोटेड on every level, on global level, national, domestic level. So according to you, I mean, how would you define body positivity and self love, और इसका importance क्या है, इसका relation क्या है mental health से? और I'm sure आपके पास भी बहुत patients आते होंगे, और self love का concept हम बार बार introduce करते हैं अपनी daily life में, and that has become the need of the hour. So how would you define it? Okay, so basically, according to me, Karthik, self-love refers to, let's start with self-love and then we can carry on with the body positivity, because I think both the issues and topics are interrelated. So, self-love is, first of all, is self-awareness. Self-awareness means when you are aware about your good as well as bad qualities. Bad and good qualities means you are aware about your strengths as well as your weaknesses. Because when we love ourselves or we love anyone else, we are not only focusing on our strength, but we are also focusing on our weaknesses. We are always striving towards the improvement. So first is self-awareness. Second, when we are talking about self-love, we are talking about believing in ourselves, having faith in ourselves. And then is motivation. We should be motivating ourselves, because in life we are facing many difficult paths, many difficult events. उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई दूसरा आदमी हमारे साथ हो, या फिर कई बार लोग चाहते हुए भी साथ नहीं दे पाते. तो हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अपने आप को मोटिवेट करते रहें और टूवर्ड्स अपने गोल स्ट्राइव करते रहें. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, सी बॉडी पॉजिटिविटी मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, योर बॉडी, योर अपीयरेंसेज एंड योर एंटायर हेल्थ एंड अदर्स ऑल्सो एज वेल. बिकॉज बॉडी पॉजिटिविटी, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मतलब कि हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो खाली अपना आप को एक्सेप्ट करने से नहीं होता, दूसरे लोगों को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बिकॉज ऑल द क्रीचर्स आर क्रिएटेड बाय गॉड एंड दिस इज नॉट जस्ट अ फिलोसफिकल लाइन, दिस इज द रियलिटी. सो आई थिंक यू हैव गिवन अ ग्रेट इंसाइट, कि सेल्फ लव का मतलब अपने आप को बिगाड़ना नहीं होता. सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ द वे यू आर राइट टुडे, इन द प्रेजेंट मोमेंट, द वे यू लुक, जैसे आप दिखते हो, जैसे आपकी सोच है, जो आपका काम है, जैसे आप खाते हो. यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ फर्स्ट. दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव. सो कंटिन्यूइंग विद दिस, माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी, बहुत बार आजकल सोशल मीडिया पे यूज़ होता है ना कि आप अपने दोस्त से कंसल्ट कर लीजिए, बात कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इफ़ समथिंग इज़ बॉदरिंग यू मेंटली.
सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना और अपने फ्रेंड से बात करने में डिफरेंस क्या होता है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू अ मेडिकल प्रोफेशनल इफ रिक्वायर्ड? Friend is after all the one you can rely on, but the thing is that we need to see to what extent we can do that, because sometimes our emotions and our feelings are from a वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय से हमारी कोई फीलिंग्स या फिर कोई इमोशंस हमारे अंदर सप्रेस्ड होते हैं। आप चाहते हुए भी कितना भी चाह लीजिए, आप कई बार बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं बता सकते दोस्तों को, क्योंकि रहना तो आपको उसी सर्कल में है। कल को आप सही भी हो जाते हैं, सही भी मतलब अगर आप बेटर भी फील करने लगते हैं, तो भी आपके मन में एक हमेशा हिचक और डाउट रहेगा कि मैंने ये बात उससे शेयर करी थी, तो कहीं वो मुझे कल को जज ना करे इसकी वजह से। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हिंड्रेंसेस ले आती हैं। ठीक है, तो अब प्रोफेशनल से बात करने में देखिए क्या फ़र्क होता है कि प्रोफेशनल इज़ अ ट्रेंड प्रैक्टिशनर। वो आपकी बात को बहुत ही अच्छी तरह सुनेंगे, ठीक, और कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए आप उनके क्लाइंट हैं और उनके लिए आप उनके मतलब जैसे क्लाइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डॉक्टर के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि वो आपके साथ बहुत उम्मीद के लिए आया होता है। तो उसके लिए तो वो उसका बेस्ट पार्ट होता है कि वो उसे सही कर दे। तो सबसे पहली बात है वो आपको जज नहीं करेंगे। सेकेंडली, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एथिक्स अपने ओथ साइन कर रखी है कि वो आपकी बात कहीं भी लीक नहीं कर सकते। थर्ड, वो आपके लिए बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। अगर आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई लव वंस भी आके उनसे बोलेंगे कुछ भी बात, क्योंकि एक पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है, तो वो कल को आपको जज नहीं करेंगे, के लिए जो बेस्ट होगा वो ही बताएंगे, बिकॉज उनके लिए आप एकदम ही न्यूट्रल पर्सन हो और उनके लिए आप बहुत उम्मीद से आए हो। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक टेक्निकल और एक प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अगर आपने उसे अडेप्ट करा तो। क्योंकि देखिए दवाई तो है नहीं कि दवाई खा के सही हो गए आप, ये सजेशंस है। अगर आप अडेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। तो इसलिए एक प्रोफेशनल से एडवाइस लेने में देखिए बेनिफिट तो होता ही है। में बहुत बार ऐसे होता है कि जो लोग प्लस साइज़ में होते हैं या स्किनी होते हैं, कई बार ना लोग को टॉन्ट मार देते हैं। अगर किसी बहुत पतले इंसान को देखेंगे, अरे तुम कुछ खाते भी तो नहीं हो क्या? या किसी मोटे इंसान को देखेंगे तो तुम कितना खाओगे यार, खाते ही रहते हो हर टाइम। तो इस टाइप के टॉन्ट जो घर पे मिले, फ्रेंड्स दें, वर्क प्लेस में मिले, उनसे कैसे डील करना चाहिए? वो बात ये है कि अगर कोई आपको कुछ भी कहता है, तो पहले तो मुझे लगता है आपको उस इंसान के इंटेंशंस को देखना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग हमारे भले के लिए भी कहते हैं। बिकॉज देखिए ज़्यादा कमज़ोर होना या ज़्यादा हेल्दी होना हमारे हाथ में है भी और नहीं भी, बट अगर कोई हमें कुछ कहता है, जैसे कि हमें देखना चाहिए कि वो कौन सा इंसान है जो हमारे को कह रहा है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करिए उसकी थिंकिंग। अगर वो हमारी भलाई के लिए कह रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आपके उनकी बातों से आपके लिए बेनिफिशियल है आप लें और उस चीज़ को इम्प्रूव करें। बट अगर कोई इंसान आपको बार बार उस चीज़ पे टोन मार रहा है और आपको उससे कुछ ज़्यादा रिगार्ड्स भी नहीं मिल रहे, बल्कि आप इम्पैक्ट हो रहे हो, बिकॉज देखिए यू कैन चेंज अदर पर्सन, बट यू कैन ऑलवेज चेंज योर रिएक्शन टूवर्ड्स दैट पर्सन। तो आप थोड़ा सा उससे अपनी टॉक्स जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा मिनिमम कर दीजिए। राइट राइट। So we can always stay away from people who are not motivating us, because we have a choice. As simple as that, and it is as simple as that, and it is very important. Going forward, I want to ask you one thing कि अगर हमें अपने दोस्त में या एज अ पेरेंट अपने बच्चे में, है ना, एज अ सिबलिंग अपने बहन भाई में कुछ बिहेवियरल चेंज दिख रहा है, या कुछ हमें चीज़ लग रही है कि उसके दिमाग में चल रही होगी, तो हम कैसे इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि हाँ हम सही हैं, या दैट पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू सम मेंटल स्ट्रगल एंड थोड़ा सा चेंज आ गया बिहेवियर में, वो कैसे स्पॉट करें, और व्हाट कैन बी अ स्टेप विच वी कैन टेक टू हेल्प दैट पर्सन, दैट चाइल्ड और दैट सिबलिंग? देखिए बात ये है कि ये बहुत ही डायनामिक क्वेश्चन है, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आंसर देने की इसकी कोशिश करती हूँ। डायनामिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं इमोशंस के, और सब अपने इमोशंस अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करते हैं। तो मैं एक ऐसा आंसर या एक एज अ होलसम आंसर नहीं दे सकती कि जिसमें सबका कवर हो जाए, बट एक जनरल अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जो भी इंसान इस दौरान
इस गुजर रहा है, इस इमोशन से गुजर रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों इस तरह से फील कर रहा है, क्या सिचुएशंस हुई हैं पास्ट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 2-3 दिन पहले ही कुछ हुआ हो तभी वो परेशान हो सकता है 1-1.5 महीने पहले कुछ हुआ हो, बट उसने इतनी ज़्यादा बात दबा ली है कि अब जाके उसको परेशानी हो रही हो। तो सबसे पहले तो बी हम्बल और बहुत ही सॉफ्ट रहना है आपको, क्योंकि लोग कई बार अपनी प्रॉब्लम की वजह से चिड़चिड़े और सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे लोग, बट आपको अपनी तरफ से बहुत हम्बल और सॉफ्ट रहना है। सेकेंडली देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि फिजिकल इलनेस में भी अगर आपको एक हद तक ही खुद दवाइयाँ ले लेनी चाहिए, जैसे लोग ले लेते हैं खुद ही, लेनी तो नहीं चाहिए, जैसे लोग ले लेते हैं खुद ही अपना इलाज करने लगते हैं, तो एक हद तक ही करना चाहिए, क्योंकि अगर बुखार बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम की वजह से या उस इंसान की प्रॉब्लम की वजह से उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके सोशल सेटिंग्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रिकमेंड करना चाहिए। और फिर आपको ये देखना चाहिए कि आपको दवाइयाँ लेनी है या फिर आपको काउंसलिंग लेनी है। अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो गो फॉर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एज पर योर एरिया जहाँ पे वो मिलते हैं, मतलब जो भी आपके आसपास स्पेशलाइज्ड हैं। और मेडिसिन लेनी है तो यू कैन कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस भी होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे आपकी बात में लगा। पहली बात तो ये कि अगर सर्दी खांसी ज़ुकाम या बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह जब हमें कुछ इमोशनल पेन या मेंटल बैगेज लग रहा है, सो वी शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। और दूसरी बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगी कि आजकल क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ये टर्म्स यूज़ हो रहे हैं और मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट कुछ लोगों को मन में डाउट होता है कि अरे हमें पिल्स दे दी जाएंगी, हमें दवाई दे दी जाएगी। सो यू हैव वेरी ईज़िली एंड सिंपली डिफ्रेंशिएटेड कि अगर मेडिसिन वाले स्टेज पे आप हैं, अगर आपको मेडिसिन लेके आपको लगता है ठीक होंगे, देन यू हैव टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। वेयर एज फॉर जनरल काउंसलिंग, और काउंसलिंग से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। For counseling, you need to consult a psychologist. On this part, I would like to conclude this video. I just want to know one thing, कि आप एक ऐसा टिप देना चाहेंगे कि जो लोग मानते हैं कि वो बहुत मोटे हैं, या बहुत स्किनी हैं, और इस रीज़न से उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या वो अपने वर्क प्लेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते। देखिए, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए, सबसे पहली बात है कि अपना आप को जानना सीखिए, अपना आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस लाइए। और देखिए, मोटा पतला होने से वैसे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको अपनी खूबियों पे काम करना चाहिए, बट किसी और के कहने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जैसा आप अपना आप को समझेंगे, दुनिया आपको वैसा ही समझेंगी। तो प्लीज़ लव योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, start accepting yourself. The day you will start accepting yourself and loving yourself, people will see you that way only. So please, आप अपना आप को देखिए, अपना आप को प्यार कीजिए। कुछ चीज़ खुद को लगती है तो ज़रूर इम्प्रूव कीजिए, पर किसी और के कहने की वजह से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये आपकी लाइफ है, इसके स्ट्रगल्स आपके हैं, इसके अचीवमेंट्स आपके हैं, तो इसके अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपके ही होने चाहिए। तो बेसिकली दिस इज माय सजेशंस कि लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। I think we had a great session, and last and very most important thing I can personally take, or I am sure a lot of viewers can also take, कि सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस कीजिए। डू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। आई विल शेयर हर Instagram handle, The Therapist Diary, for your daily dose of motivation. मैं स्वाति की email ID भी नीचे comment box में share कर दूँगा. If you personally want to consult her, or you want to consult anybody, I would suggest please go for it if required. And thank you so much, Swati, for giving us a lot of time today. And I hope people will like this video, and we are going to continue the sessions and come up with a lot of videos which are going to help each and everybody out there. Thank you.